Now let us start with unit 2. The logic of compound statement. The logic of compound statements. So let us understand it is the continuation of the logic topic, but this we are going to study under unit 2, the logic of the compound statements. So let us understand what we are going to see in that. Okay. Now the first thing I am starting with the predicate. Okay, the logic of the quantified statement. I'm sorry. It is the logic of the quantified statement. Do you all know any one of the quantifier? Any one of you know any quantifier? क्या होता है? Okay, very good. I got my answer. So before I start with quantifier, you need to understand some of the things, some of the basic terms. The first term is predicate. So what is a predicate? Now, yeah, in the last when I was explaining you what is a statement, okay? So any statement in which any sentence which is either true or false, then it's called as statement, but not both at the same time. All right. तो मैं आपको एक sentence देती हूँ. He is a student. All right. He is a student. Is it a statement? He is a student. Is it a statement? Yes, He is a student. Ah. नहीं. Define नहीं है कि कौन है, he कौन है? Who's he? We don't know, right? He is a student. It is just a sentence. But when I will substitute value for he, when I will substitute some person in place of he, then you will be able to say whether it is a true statement or whether it is a false statement. Yes or no, kids? You all agree with me? Yes, ma'am. Okay, so he is a student. It is just a sentence. It is not a statement. So when I will substitute, when I will put some values in place of he, then it will become a statement. Okay, ये एक example था. Now second example मैं ले रही हूँ. He is a student. He is a student. He is a student and he studies. He stays at or he studies. He studies at this college. Yeah, he study at this college. Okay. What do you think? Is it a statement? No, ma'am. Why it is not a statement? Why it is not a statement? कौन है he? This college, कौन सा college? Yes. Who is he? Who is this college? Like what is this college? ये college कौन सा है? So we don't know all of this thing, right? So इसके अंदर कितने unknowns थे? एक unknown था he और एक unknown क्या था college कि कौन सा college है, right? So predicate का मतलब क्या होता है कि predicate it is a sentence, okay, which contains finite number of variables or finite number of unknowns. Finite number तो आपको पता होगा कि which you can count, right? So predicate is a sentence which contains a finite number of unknowns. Now first example में कितने unknown थे बच्चों? First example में कितना था? One unknown था. One unknown. Wherein second example में कितने unknown थे? Two unknowns थे, right? वैसे मैं और भी multiple questions का frame कर सकती हूँ, create कर सकती हूँ, in which there will be more than two unknowns also, right? So predicate is a sentence which contains finite number of unknowns but become a statement when values are substituted in place of unknowns. I'll repeat my statement. Predicate, it is a sentence which contains finite number of variables or unknowns and becomes a statement when the values are substituted in place of the unknowns. Did you get it? What did I say that just now? No. Yes, ma'am. मैम एक बार रिपीट करो ना. एक सेकंड मैं आपको दिखाई देती हूँ. आपको टेक्स्ट बुक में प्रेडिकेट का डेफिनेशन क्या था. ना अभी यूनिट 2 से थोड़ा थिंकिंग थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, बिकॉज अभी यूनिट 1 तो बहुत इजी था, सेट थियरी लॉजिक फटाफट आपने कर लिया ना. अभी जो यूनिट 2 से थोड़ा स्टार्ट होगा वो थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. Wait a minute, I'll just show you the definition. The logic of the quantified statement.
ओके, प्रेडिकेट का डेफिनेशन सभी को विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. so predicate is a sentence that contains finite number of variables. क्या ये लाइन आपको समझी कि predicate is a sentence that contains finite number of variables? Yes, ma'am. Yes, हाँ, yes. चलो एग्जांपल दो, जल्दी से एग्जांपल दो। एग्जांपल दो जिसमें सेंटेंस रहेगा और फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब अननोन्स। या He is a man वगैरह। He got ही a इज अ dog. स्टूडेंट। अभी हम मैंने एग्जांपल दिया ना, ही इज अ स्टूडेंट, so it is a sentence which contains how many variables? One. One. Only One. one variable. So a predicate is a sentence that contains a finite number of variables. तो ये example है जिसमें only one variable थे। Can you create a sentence which will contain more than two unknowns, more than two variable? Can you create a sentence? Tell me quickly. Can you create a sentence in He which got a there will pen be from more? her. He got a pen from her. तो इसमें दो ही unknown है ना, he and her. दो ही unknown है। I want you all to create an example, a sentence which will have more than two unknowns or more than two variables. He is playing with his Study. friends. He is playing with his friend and okay, ये आपने सही अच्छा example। He is a He student. He studies in this college और उसके बाद में थर्ड ईयर डाल देंगे उसमें कि he is tall. ओके, ही के बारे में बात हो रही है तो ही को दो बार काउंट नहीं करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे। Ma'am, हाँ he studied in this university with him. Okay, he studied in this university or in this college with him. So very nice example. तो इधर unknown क्या क्या हो गया? He हो गया, this हो गया and him हो गया. So this is a sentence which contains three unknowns. तो ऐसे आप बहुत सारे examples, बहुत सारे statement create कर सकते हो on your own, which will not be a statement, which will be just a sentence in which बहुत सारे unknowns factor क्या रहेंगे? Present रहेंगे, ठीक है? So Ma'am, predicate is a friends sentence that variable नहीं होगा? sorry, Friends variable नहीं होगा? हाँ वेरिएबल होगा ना, क्यों नहीं होगा? he studied at this college with his friend. So his friend कौन है? उसके friend भी तो unknowns ही है ना, so that is also a variable, right? So predicate is a sentence that contains a finite number of variables. I hope ये पहले लाइन का मतलब सभी को समझ गया है। And becomes a statement. And becomes a statement. Statement कब हो जाएगा ये sentence? Statement कब कहलाएगा? When specific values are substituted for the variables. तो जब आप एक specific value put कर दोगे in variable की जगह, then that sentence will become a statement. Did you understand this point or this the definition of a predicate? Predicate का definition क्या होता है अभी समझा? So predicate is a sentence that contains a finite number of variables and becomes a statement when specific values are substituted for the variables. Now अभी अब मैं ये तो हो गया predicate का definition. Now how do we denote predicate? तो क्या आप बार-बार predicate लिखोगे? हम लोग mathematics पढ़ रहे हैं, English literature नहीं. So there is a way of writing predicate. तो अगर एक ही unknown है ना किसी sentence में तो उसको हम कैसे लिखेंगे? P of X से. किससे लिखेंगे बच्चों? P of X से। कोई भी अगर he is a student तो इसमें एक ही unknown है तो उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? P of X से। अगर दो unknown रहेगा तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? We can use another variable to denote the predicate and दो unknown है तो कैसे लिखेंगे? X, Y. So it is a predicate which we have denoted by Q and there are two unknowns X, Y. क्या आपको ये नोटेशन समझा? How do we denote predicates? तो मैं आगे बढ़ूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. ना अभी हम क्या करेंगे? अभी ये जो प्रेडिकेट है इसके अंदर अननोन्स है एक्स एंड वाई, राइट? अभी इस एक्स वाई का आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू पुट करोगे तभी तो आप बता पाओगे ना कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, राइट? तो ये जो वेरिएबल जो ये वैल्यू पुट करोगे एक्स एंड वाई की जगह, वो क्या कुछ भी रैंडमली पिकअप कर लोगे? नो, यू आर नॉट गोइंग टू पिकअप एनी रैंडम वैल्यू, ठीक है? तो आपको एक एरिया देंगे कि भाई ये एरिया में से आपको क्या करना है? इसका वैल्यू उठाना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू आपको रखना है।
उस एरिया के बाहर का आगे पीछे का आप कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। मतलब आपको मैं एक एरिया दे दूंगी, भाई यही एरिया में से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू उठा सकते हो जो आप एक्स और वाई की जगह पे रखोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक एरिया दे दिया कि SM शेट्टी कॉलेज, ठीक है, तो आप कोई और कॉलेज के ऊपर काम नहीं करोगे, आप कोई और कॉलेज के बच्चे को नहीं उठा के उस स्टेटमेंट में डालोगे। तो मैंने आपको एक एरिया दे दिया, मैंने आपको एक रेस्ट्रिक्ट कर दिया, राइट, कि आप यहीं से भाई इनपुट ले सकते हो। सो दो जो एरिया, जो रेस्ट्रिक्शन एरिया रहता है, जो इनपुट जहां से आप उठाने वाले रहते हैं, उसे हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं हम उसे? डोमेन। सो डोमेन, द डोमेन ऑफ अ प्रेडिकेट वेरिएबल मतलब ये एक्स एंड वाई जो अननोन्स है, is the set of all values that may be substituted in place of the variable। तो डोमेन में से ही आप क्या करोगे, अपना वैल्यू उठाओगे जो एक्स एंड वाई की जगह पे आप रखोगे। तो अगर मैं आपको डोमेन दे दूं z प्लस मतलब क्या, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही ले सकते हो आप। तो सिर्फ आपको पॉजिटिव इंटीजर ही लेना, आप नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, आप डेसिमल नंबर नहीं ले सकते, आप कोई इरेशनल नंबर नहीं ले सकते हो। यू हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव इंटीजर। सो आई होप द मीनिंग ऑफ द डोमेन इज क्लियर। यस सोहेल, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं मैम। ऑलराइट, तो डोमेन का मतलब समझा कि आपको एक सेट दिया हुआ है, उस सेट में से ही आपको एक वैल्यू उठा सकते हो, भाई उसके आगे बाहर का वैल्यू आप नहीं उठा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आई टुक ओवर हियर एज पॉजिटिव इंटीजर, तो आप पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू एक्स और वाई की जगह पे रख सकते हो। आप कोई और वैल्यू, कोई नेगेटिव नंबर, कोई डेसिमल नंबर, कोई इरेशनल नंबर आप नहीं रख सकते हो। आई होप आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है। यस मैम। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, डेसिमल नंबर नहीं आता, नेगेटिव नंबर नहीं आता और जीरो भी नहीं आता। ठीक है, सो लेट अस सी एग्जांपल। नाउ फाइंडिंग ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ प्रेडिकेट। ओके, तो एक प्रेडिकेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको किससे डिनोट किया बच्चों? इन दिस हाउ इट इज डिनोटेड? इट इज डिनोटेड बाय p of x। p of x से डिनोट किया। एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट ओवर हियर? प्रेडिकेट ओवर हियर इज व्हाट? x स्क्वायर इज ग्रेटर देन x। ये आपका प्रेडिकेट है। विल यू से दैट इट इज अ स्टेटमेंट? क्या आप इसको स्टेटमेंट बोलोगे क्या, x स्क्वायर ग्रेटर देन x? नहीं No, बोलोगे ma'am. स्टेटमेंट, नहीं बोलोगे, बिकॉज आपको नहीं पता है कि आपने कौन से x के लिए आपके क्या आप बोल रहे हो कि इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट? वी डोंट नो कि x का वैल्यू क्या है। जब तक आप x की जगह वैल्यू नहीं पुट करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। बिकॉज सम वैल्यूज के लिए ये भी ट्रू भी हो सकता है, फॉर सम वैल्यूज इट कैन बी फॉल्स आल्सो। ऑलराइट, सो इट इज अ प्रेडिकेट। नाउ x की जगह पे हमें वैल्यू रखना है, बट एरिया क्या दिया हुआ है, हमारा डोमेन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द डोमेन गिवन टू अस कि भाई आप कहां से वैल्यू उठा सकते हो? डोमेन इज व्हाट? डोमेन क्या है? द डोमेन, रुको जरा, द डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन दिया, मतलब आप कोई भी रियल नंबर उठा सकते हो, आप इस x की जगह पे रख सकते हो, राइट? p of 2, p of half, p of minus half। बट आपको क्या बोल रहा है सिर्फ निकालने के लिए? p of 2 बोल रहा है, p of half निकालने के लिए बोल रहा है, एंड p of minus half। and indicate which of these statements are true and which are false। तो कौन ये p of 2, p of half and p of minus half आप जो निकालोगे उसके लिए कौन सा p of 2 इसमें से कौन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है वो आपको इंडिकेट करना है। तो उससे पहले x की जगह पे क्या रखा है? x की जगह पे क्या रखा है बच्चों? उसे 2 रखा है, ठीक है। x की जगह पे क्या रखा है? 2। तो अगर मैं x की जगह पे 2 रखूं तो ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर हो जाएगा। और ये x क्या हो जाएगा? 2 जाएगा, बिकॉज x का वैल्यू अभी मैंने क्या लिया है? 2 लिया है। क्या 2 स्क्वायर बड़ा है 2 से? यस मैम। 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 2, तो इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट हम निकालते हैं p ऑफ हाफ। p ऑफ हाफ निकाल रहे हैं बिकॉज मेरा डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है, मतलब मैं हाफ भी ले सकती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो p ऑफ हाफ निकाल रहे हैं, x की जगह पे अभी आपको क्या रखना है? हाफ। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ स्क्वायर। इज हाफ स्क्वायर ग्रेटर देन हाफ? हाफ स्क्वायर कितना होता है? 1/4। क्या 1/4 बड़ा है हाफ से? नहीं मैम। No. 1/4 इज, हाँ और क्यों, कौन बड़ा है? हाँ 1/4 कितना होता है? 0.25। और 1/2 कितना होता है? 0.5। 0.5। क्या 0.25 बड़ा है 0.5 से? नो, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ लास्ट क्या है? p ऑफ माइनस हाफ। ना p ऑफ माइनस हाफ क्या होगा? माइनस हाफ का स्क्वायर। इज माइनस हाफ का स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस हाफ? सो माइनस हाफ का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हाफ, प्लस 1/4 हो जाएगा। एंड पॉजिटिव वैल्यू हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है नेगेटिव वैल्यू से, राइट? नो? Yes, ma'am. यस और True. ओके, सो ये अच्छा चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे बताओ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। p ऑफ 1 निकालो, p ऑफ 1 निकालो, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है।
P of 1 क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ? What is P of 1? 1 होगा। P of 1 क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट में पुट करो, प्रेडिकेट 1 में पुट होगा। करो, false, प्रेडिकेट में पुट करने के बाद क्या होगा? 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 1। क्या 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना था? 1। false क्या है ना? इज, हाँ, इज 1 ग्रेटर देन 1? false, no, नो मैम। No, the no, both are false है what? मैम, Equal. हाँ, both are equal. Both are equal. Not one is greater than one is not true. Both are equal. Okay, so that is a false. So I hope you have understood कि कैसे आपको predicate में values put करना है, और जहाँ से हम वैल्यू उठाते हैं उसे कहते हैं डोमेन। ठीक है, 1 by 1 वैल्यू पुट करने के बाद विल कम टू नो कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। अंडरस्टूड सो फार? तो मैं आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. हाँ मैम। Okay, now let us go to the next definition. हम next definition पे जाएंगे, which is called as truth set. अभी truth set से आपको समझ में आया कि हम वो सब वैल्यू लेंगे जिसके लिए हमारा प्रेडिकेट क्या था बच्चों? ट्रू था। I will take all those values for which my predicate is what? True. मतलब आप basically आपका सेट क्या होगा? I will take all those values from the domain for which मेरा predicate क्या हो रहा है? satisfy होना चाहिए। Does it make sense जो मैंने अभी लिखा? So truth set क्या होगा? All those elements of the domain which will satisfy my what? Predicate. जो मेरे predicate को true साबित करेगा वही value क्या होगा? मेरे truth set के अंदर आएगा। Truth set का मतलब समझता है ना? जिसके लिए Yes, मेरा ma'am. predicate क्या होना चाहिए? True होना चाहिए। तो all those elements of D for which my predicate is true. तो इसको इस तरीके से लिखेंगे set builder form में। तो ये predicate के लिए बताओ कौन कौन सा truth set के अंदर आएगा? 2 आएगा क्या? यस, ट्रू सेट में 2 आएगा बिकॉज 2 के लिए मैं प्रेडिकेट क्या था? ट्रू था। हाफ आएगा क्या? हाफ के लिए मैं प्रेडिकेट क्या था? फॉल्स, तो हाफ विल नॉट कम। माइनस हाफ आएगा क्या? यस, माइनस हाफ के लिए मैं प्रेडिकेट ट्रू था तो माइनस हाफ विल कम। गॉट हाँ, ये इट? नहीं। ओके, ma'am. तो चलो हाँ, तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, व्हिच इज प्रेडिकेट। सो इफ p of x is a predicate, if p of x is a predicate and x has a domain D, इसका मतलब समझा तो मैं आगे बढ़ू। If p of x is a predicate and x is a domain D, x is a domain D मतलब क्या? x is a domain D मतलब क्या? जो आप x जगह पे वैल्यू रखोगे वो कहाँ से लोगे? डोमेन D से लोगे। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग एंड x हैज अ डोमेन D। तो जो x की जगह जो वैल्यू रखना है वो कहाँ से लेना है? डोमेन D से लेना है। The true set of p of x is a set of all elements of D that makes p of x true. तो वो D के सारे वैल्यूज लोगे जो मेरे p of x को ट्रू बनाता है when they are substituted for x. Thus the truth set of p of x is denoted by thus. I hope आपका डेफिनेशन ये क्लियर है बच्चों। ये डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज मैं एग्जाम जब आपका टेस्ट कंडक्ट करूंगी तो उसमें मैं एमसीक्यूज लेने वाली हूँ, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यस नीलेश बोलो। मैम डोमेन डी मतलब जो नंबर दिया रहेगा वो ना? हाँ, डोमेन मतलब आप जहाँ से वैल्यू रखोगे एक्स की जगह पे। p ऑफ x में क्या रहेगा? अननोन x प्रेजेंट है, आप उस x की जगह पे वैल्यू रखने वाले हो ना, तो कोई भी वैल्यू रखोगे क्या? नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं रखोगे। जो आपको मेंशन रहेगा ना कि भाई यहाँ से वैल्यू आपको उठाना, तो वहीं से आप वैल्यू उठाओगे। ही इज अ स्टूडेंट, अभी ही की जगह पे कौन सा वैल्यू रखने वाले हो? क्या कोई भी इतने पूरा मुंबई इतना बड़ा है तो आप क्या मुंबई में इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो कौन से कॉलेज का आप लेने वाले हो? तो आप कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं रखोगे। मैंने आपको एक एरिया दे दिया कि भाई पवई, तो पवई में जितने भी कॉलेज रहेंगे, पवई में जितने भी आसपास के कॉलेजेस रहेंगे, वही बच्चों को आप इधर रख सकते हो और कोई भी जगह का वैल्यू इधर नहीं रख सकते। ओके, सो ही की जगह पे आप सिर्फ पवई के स्टूडेंट जो आसपास के कॉलेजेस है वही उसी इंसान को आप ही की जगह पे रखोगे, या फिर भाई कला घाटकोपर ये सब जगह के कॉलेजेस का नाम आप इधर नहीं रखोगे। तो जो एरिया दे दिया जहाँ से आपको वैल्यू उठाना है उसे हम कहते हैं डोमेन। आई होप नीलेश योर डाउट इज क्लियर। यस मैम। मैम अगर जैसे आप बोला ना पूरा रियल नंबर का सेट बोला तो उसमें सब तो आ जाएंगे, फिर थोड़ा कैसा यस होगा? यस यस करेक्ट। तो अगर आपको दे दिया है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर दे दिया तो आप कोई भी रियल नंबर पिकअप कर सकते हो। तो अब आपको कोई सोचना नहीं है कि नहीं मैं ये वैल्यू नहीं उठा सकता, मैं वो वैल्यू नहीं उठा सकता। आप सारे वैल्यू उठा सकते हो जो भी आपको रियल नंबर पता है, बट मेक श्योर कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं उठाना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज मेरा डोमेन क्या यस है? मैम। रियल नंबर है, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं ले सकते हो। ठीक है, यस मैम क्लियर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। फाइंड द ट्रूथ सेट ऑफ अ प्रेडिकेट
प्रेडिकेट क्या है हमारा? अभी ये क्वेश्चन में प्रेडिकेट किससे डिनोट किया गया? क्यू ऑफ एन से। व्हाट इज माय प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या है बच्चों बताओ? व्हाट इज द सेंटेंस? एन इज अ फैक्टर ऑफ 8। एन इज अ फैक्टर ऑफ 8। ये है मेरा प्रेडिकेट बच्चों, ये है मेरा प्रेडिकेट, ठीक है। फाइंड द ट्रूथ सेट ऑफ क्यू ऑफ एन इफ माय डोमेन। पहले क्वेश्चन के लिए मेरा डोमेन देखो, डोमेन क्या है मेरा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो एन की जगह पे। चलो चलो सब भूल जाओ, वापस से शुरू करते हैं। मैं प्रेडिकेट किससे डिनोट किया बच्चों? क्यू ऑफ एन से। इसके अंदर अननोन कौन से किससे डिनोट किया है? अननोन को किससे डिनोट किया है? अननोन को एन से। वेरी गुड। अननोन को किससे डिनोट किया हुआ है? एन से। मतलब आपको जो वैल्यू पुट करना होगा किसकी जगह पे पुट करना होगा? एन की जगह पे। क्या आप एन का कोई भी वैल्यू ले सकते हो? No, ma'am. मतलब कौन सा वैल्यू ले सकते हो सिर्फ एन का? पहले वाले Factor में of 8. जो 8 से डिविजन। हाँ, जो मेरे प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करना चाहिए। ट्रूथ सेट फाइंड आउट। ट्रूथ सेट फाइंड आउट करना है। ट्रूथ सेट मतलब क्या? जो मेरे ये प्रेडिकेट को ट्रू बनाएगा, सिर्फ वही वैल्यूज को मुझे लेना है, ठीक है। और कैन आई टेक एन का वैल्यू इज -1? फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए या फिर मैम सेकंड वाले के लिए पूछ रहा हूँ? पहले वाले क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं हम। नहीं, पहला no, क्वेश्चन के क्यों No, नहीं ले no. सकते? क्यों नहीं ले सकते? पॉजिटिव इंटीजर बोला है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बोला है। हाँ, बोला है भैया कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना। तो मतलब मैं नेगेटिव नंबर को देखूंगी भी नहीं। आई हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव इंटीजर। सो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सा वैल्यू है हम एन की जगह पे रखेंगे, सो दैट कि मेरा प्रेडिकेट क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। कैन आई टेक 0? यस मैम। वेरी गुड। No. क्यों 0 क्यों नहीं ले सकती? मैम वो +3 नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हाँ, 0 neither पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो 0 नहीं ले सकते। तो आई हैव टू स्टार्ट विद 1। कैन आई टेक 1.1? नो, ओनली इंटीजर। इंटीजर दिया। करेक्ट। और बाय द वे हम लोग ट्रूथ सेट की बात करें तो ट्रूथ सेट मतलब कि जो मेरे प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करेगा वही वैल्यू आएगा जो। तो कैन आई टेक 1? 1 इज इट अ फैक्टर ऑफ 8? नो। मार खाओगे अभी। फैक्टर मतलब क्या? मैम 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 होगा। यस राइट। तो मतलब फैक्टर मतलब क्या होता है कि अगर मैं 8 को डिवाइड करूँ वो नंबर से, तो मुझे इंटीजर क्या मतलब जो वैल्यू आना चाहिए वो इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 8 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है? 8 होता है ना। वो 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। सो ट्रूथ सेट में 1 आएगा। 2 आएगा क्या? 2 इज इट अ फैक्टर ऑफ 8? यस। यस, तो 2 भी आता है बिकॉज 8 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 4 व्हिच इज इंटीजर वैल्यू। सो 2 विल आल्सो कम। 3 आएगा क्या? 3 क्यों नहीं नहीं। आएगा? क्या प्रॉब्लम है भाई? 8 6 को और 3 से 9 डिवाइड कर सकती हूँ ना। 2 पॉइंट समथिंग रिमाइंडर 2 समथिंग है। आएगा। 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। इंटीजर चाहिए ना मैम, वो तो डेसिमल करेक्ट हो गया। करेक्ट। रिमाइंडर 0 आएगा मतलब वो क्या है? वो फैक्टर है। तो इसका तो रिमाइंडर 2 है तो इट इज नॉट अ फैक्टर। सो 1 2 फिर 4 आएगा क्या? 4 इज इट अ Yes, फैक्टर? ma'am. या पूरा आएगा मैम। 4 5 आएगा। आएगा? 5 आएगा क्या? नो नहीं, No, बाद ma'am. में डायरेक्ट। नो 6 7 नो। नो। ये 7 8 नहीं आएगा। 8 8 यस। आएगा। Yes, ma'am. yes 8 is a factor of 8 because 8 divided by 8 किया तो आंसर आता है 1। ऑल राइट। 9 आएगा क्या? नहीं। ओके नहीं। किसी नंबर का फैक्टर उसके उस नंबर से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। अगर मैं नंबर 8 ले रही तो उसका फैक्टर 8 होगा या तो 8 से छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। तो सिर्फ यही है जो 8 के क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। गॉट इट? सो ट्रूथ सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? इधर 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो दैट इज द ट्रूथ सेट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। now क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या हो जाएगा ट्रूथ सेट? इफ डोमेन क्या हो रहा है अभी? डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो अब कोई भी अभी सेट ऑफ ऑल इंटीजर मतलब यू कैन टेक नेगेटिव नंबर्स आल्सो। डबल हो तो अब जाएगा। बताओ। हाँ सो नेगेटिव अभी 1 ये क्या? नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव, तो इसमें नंबर और ऐड हो जाएंगे। नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव 8। सो अभी कितने हो गए? सेकंड क्वेश्चन के लिए मेरे कितने हो गए? उसके अंदर ट्रूथ सेट में 8 एलिमेंट्स। गॉट इट एवरीवन? आपको ट्रूथ सेट कैसे क्या मतलब है उसका समझा आप सभी को?
Yes, ma'am. Yes. चलो, before proceeding ahead, let us understand whatever we have understood so far. पहले हमने क्या समझा, what is a predicate? Predicate का definition बताओ जल्दी. So रटा रटा definition नहीं, आप अपने own wordings में जो आपको समझा वो ऐसे भी बता सकते हो. Definite variables. जो एक उसको स्टेटमेंट बना दे, जो वेरिएबल डबल इनवर्ट कॉमा में रहे। Having definite variable that converts the variables into statement. Okay, so predicate it is a sentence. पहले तो ये होना चाहिए कि एक sentence रहेगा जिसके अंदर कुछ unknown factors रहेंगे. Unknown factors रहेंगे which is called as mathematics में हम क्या बोलते हैं, unknown factors को variables कहते हैं. ठीक है, unknown factors हम क्या कहते हैं, variables कहते हैं. ठीक है, so उस variable की जगह अगर हमने value substitute किया तो वो क्या हो जाता है, statement हो जाता है. ठीक है ना, अभी आप value जो substitute करोगे वो कहाँ से उठाओगे, जो unknown की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, डोमेन से उठाओगे. वेरी गुड. डोमेन के बाहर का वैल्यू अपनी लोगे, जहां से वैल्यू उठाओगे उसे हम कहते हैं डोमेन. तो उस डोमेन पे ही आपको काम करना है. ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ट्रूथ सेट क्या होता है. ट्रूथ सेट क्या होता है, जो मेरे प्रेडिकेट को क्या बनाएगा, ट्रू बनाएगा. सो ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ माय डोमेन व्हिच मेक्स माय प्रेडिकेट ट्रू, दैट विल कम अंडर माय ट्रूथ सेट. गॉट इट? यस मैम. चलो मैं क्वेश्चन देती हूँ, उसका आप थोड़ा विचार करो. नो वन विल आंसर इन कोरस. थोड़ा विचार करो एंड देन ट्राई टू आंसर. ओके, लेट मी गो टू द क्वेश्चन बैंक. Okay, question number 3 and 4. I'm giving all 2 minutes. Just think over this question. No one will answer in chorus. Think over this question and answer me कि क्या होगा. ठीक है, question number 3 and question number 4. ठीक है, याद रखो, घाई घाई में आंसर नहीं करना है. Take your time and answer me कि what is going to be the answer. Question number 3 and question number 4. Whoever knows the answer, they can raise their hand. Okay, Smith knows the answer. Okay, very good. Wait. 2 minutes is not over yet. All right, I can see Smith, Pradyuman, and Cyrus Shetty. What about other kids? Have they not understood it or what? ये 3 बच्चों को छोड़ के मैं बाकी बच्चों से क्वेश्चन करने वाली अभी मैं. समीर अंसारी, रोल नंबर 4. रोल नंबर 4, समीर अंसारी. शमीर अंसारी, सॉरी, शमीर अंसारी. एक बार और आपका नाम मैं I will take, otherwise after that I will remove you. Roll number 4. All right, कोई बात नहीं शमीर, तुम नेक्स्ट लेक्चर में आंसर करो अभी. वेदांत, रोल नंबर 5, वेदांत. वेदांत, वेदांत.
Okay, no problem, Vedant. Tanisha, roll number 9. Yes, ma'am. हाँ तनिषा, क्या लगता है तुमको क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे? पहले हम लोग सबका P of 2 और सबका वैल्यू ढूंढेंगे. अच्छा ठीक है, चलो P of 2 बताओ. P of 2 का truth set is true because 2 will be Why? greater than 1 upon 2. Okay, so this is true. Very good. Next. P of 1 by 2 will be हो जाएगा greater than 1 upon 1 by 2. तो 2 ऊपर चले जाएगा. Is it true? So that will be false. All right. Very good, Tanisha. Next. P of minus 1 will be minus 1 greater than 1 upon minus 1. That is going to be false. Correct. क्योंकि वो minus 1 हो जाएगा end में. Then P of minus 1 by 2 will be 1 by 2 greater than 1 upon minus 1 by 2. So that will again become minus 2. So is it true? No. Yes, ma'am. नहीं. Yes or no, Tanisha? False. True है मैम. नेगेटिव नंबर्स बड़े होते हैं, जितने छोटे होते हैं उतने बड़े होते हैं. Who is bigger, -2 or -3? Who is bigger? -2. Minus What 2. is it? वैसे Then P of -0. minus P of -8 कितना होगा? वो भी false रहेगा because minus 8 will be smaller than 1 by minus 8. Minus Yes, 1 by. correct. So it is false. ठीक है. तो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. वेरी गुड तनिषा. सॉरी वेरी गुड. ओके. नेक्स्ट. इससे आगे कौन बताना चाहेगा? इतना सिंपल क्वेश्चन है भाई. Find the truth set. Second question. Find the truth set for P of x if the domain x is R, that set of all real numbers. Truth set में क्या क्या आ जाएगा फिर? -1 by 2 और 2 आ जाएगा बस. ओके. 2 आएगा. 2 के लिए ट्रू था. और 3 के लिए ट्रू होगा क्या? 3 के लिए भी. हाँ 3 के लिए भी ट्रू होगा. 4 के लिए भी ट्रू होगा. हाँ सब अरे वो पॉजिटिव. नहीं मैं 4 के लिए Don't you true think so? If I take any positive real number, it is going to be true. Yeah, all positive Yes, integers. है ना? If I take any positive real number, it is going to be true. If I take 1.5, so the 3 by 2 it is. 3 by 2 लिया x तो. देखो बच्चों, हमें ये सिर्फ इसमें से आइडेंटिफाई नहीं करना. हमें डोमेन क्या बोल रहा है? R. तो R में से कितने वैल्यूज रहेंगे जिसके लिए सबके लिए मेरा प्रेडिकेट करना चाहिए ट्रू होना चाहिए. मुझे लगता है कि सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए मुझे फॉल्स मिला है क्या? सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए मुझे फॉल्स मिला है क्या? Yes, ma'am. ना. सारे वो तो पॉइंट में आएंगे उनके लिए ये ट्रू हो जाएगा बस. नहीं करेक्ट. जो फ्रैक्शनल नंबर रहेंगे मुझे लगता है कि उसके लिए ट्रू रहेगा. नहीं ऐसा भी नहीं है. ऐसा भी नहीं है. ठीक है, नहीं, सोचो नहीं. थोड़ा इसके ऊपर. इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सोचो, मुझे बताओ नेक्स्ट लेक्चर में. क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर सी. ठीक है, सो दैट्स इट. डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होगा उनके लिए ये ट्रू रहेगा. डिनोमिनेटर नेगेटिव ज्यादा. नहीं. हाँ डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो करके देख ले भाई, पहले आ जाएगा. हो जाएगा. मैम x की वैल्यू अगर रियल नंबर होगी तो वो ट्रू रहेगा. देख, मुझे तो लगा पहले तो ये मुझे समझ में आया कि कोई भी अगर ने पॉजिटिव रियल नंबर लिया, तो उसके लिए ट्रू होगा, राइट? पॉइंट वाले ले मतलब लिए ये तो पॉइंट वाले ले ली तो फॉल्स हो गया. मतलब कोई एग्जांपल जिसके लिए फॉल्स हो रहा है? मैम आप कोई भी नंबर लो, उसको आप है ना डिवाइड करने ही वाले ना, कुछ भी करो फ्रैक्शनल में आने ही वाला है. सपोज 3/2 ले लिया तो 3/2 क्या 3/2? लेट अस चेक दिस कंडीशन. 3/2 is it bigger than 2/3?
ये 1.5 होता है, ये 0 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये मुझे तो लगता है कि हर एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए मेरा जो गिवन प्रेडिकेट है वो ट्रू Yes, होना ma'am. चाहिए ना, और मुझे देखना है कि वो नेगेटिव नंबर्स में कैसे काम कर रहा है। पॉजिटिव के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट अबाउट नेगेटिव Negative. नंबर्स? पॉजिटिव अगर के लिए भी तो मैं प्रॉब्लम है मैम। क्यों, कौन से वैल्यू के लिए प्रॉब्लम है जैसे बताओ तो इसी जरा। 1/2, 1/4, 1/8 ऐसे वगैरह कोई भी ले लिया करो, जैसे 2/8, 7/8 जिनका न्यू डिनोमिनेटर अच्छा ज्यादा अच्छा है तो अच्छा, उनके लिए तो ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ यस राइट राइट, क्या सही है मेरे और बच्चे डिनोमिनेटर इतने। बड़ा रहेगा. So अगर मैंने 1/8, it is a positive number, right. So it is not bigger than 1/1/8 because ये तो फिर ऐसा हो जाएगा, right. Very good, very impressive kids. So let us check इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ये कौन सा 3.1 है, ठीक है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, let us check that. Three point one, question number 3. एट पॉइंट थ्री पे हम लोग अभी। एंड मैम एक और चीज, हाँ बोलो बोलो। अगर मतलब इसको एक के लिए भी गलत प्रूफ कर देते तो वो तो ट्रूथ सेट नहीं रहेगा ना। ना ना ना, ट्रूथ सेट में मतलब वी आर पुटिंग ओनली दोस वैल्यू फॉर व्हिच माय प्रेडिकेट इज ट्रू। कीप इट सिंपल। हाँ वो क्वांटिफायर है बेटा, क्वांटिफायर हमने मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, तो उसके बारे में सोचने का भी नहीं। ठीक है मैम। तो ट्रूथ सेट का मतलब क्या, वही वैल्यू आप डालोगे उस सेट के अंदर जिसके लिए मेरा प्रेडिकेट क्या हो All रहा है, set ट्रू is हो रहा है। रुको जरा, 3 पॉइंट मेरे को एक बार देखना है कि व्हाट इज द आंसर। 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग कहाँ पहुंचे? 5.3 पे पहुंचे। मैम कंट्रोल F करके सर्च कर लेते. हाँ यू आर राइट, कभी कभी क्लिक नहीं होता है। 3.1 था ना वो? यस मैम। 3.1 ये देखो। The answer is, if the domain of P of X is the set of all real numbers, then the truth set is the set of all real numbers X for which either X greater than 1 or X is lying between -1 to 0. Did you understand, kids? नहीं। So No. जो आप लोग मुझे बोल रहे थे ना कि मैम पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी अगर मैंने 1/8 ले लिया तो उसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो इधर हाँ क्या मैम। बोल रहा है कि अगर आप x ग्रेटर देन 1 लो तो ग्रेटर देन 1 के लिए तो मेरा वो प्रेडिकेट सेटिस्फाई करेगा ना बच्चों। अगर मैं x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लूं, 3/2 इट इज ग्रेटर देन 1 और उसके लिए ट्रू मिला था हमको। आई कैन टेक 4/3 इट इज आल्सो ग्रेटर देन 1। सो अगर बट आप Yes, 1 से ma'am. कोई वैल्यू लेस लोगे, 1 से जैसे 1 से लेस क्या लेता हमने 1/8 लिया था, तो 1/8 के लिए मेरा प्रेडिकेट क्या था, ट्रू नहीं था। सो वही बोल रहा है कि द ट्रूथ सेट विल बी द ऑल दोस वैल्यू ऑफ x व्हिच आर ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव नंबर्स के लिए हमने पाया कि कौन से वैल्यू के लिए वो करेक्ट था। तो ये मैम बोल रहा है मतलब कि नेगेटिव नंबर्स में यू कैन टेक ओनली दोस वैल्यूज व्हिच आर लाइंग बिटवीन -1 to 0। सिर्फ उसके लिए मेरा प्रेडिकेट क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। बाकी सबके लिए क्या होगा, फॉल्स होगा। सो ये है आपका ट्रूथ सेट फॉर ऑल दोस x ग्रेटर देन 1 और द x लाइंग बिटवीन -1 to 0। यस, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? हाँ मैम, मतलब क्वांटिफायर मतलब स्कोप होता है, तो मैम स्कोप में मतलब हर टाइम आपको कंडीशनल आंसर आएंगे ना, तो मैंने अभी तो तक मैम ये भी, क्वांटिफाई नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ ट्रूथ सेट पढ़ा है। हाँ तो मैम ये भी मतलब कंडीशनल आंसर आना आएगा क्या, मतलब हर टाइम? कंडीशनल, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कंडीशनल आंसर आएगा मतलब या फिर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, वैसा? दोनों भी तो हो सकता है ना। देखो फॉर दिस एग्जांपल
मुझे वैल्यूज कौन कौन से वैल्यूज के लिए ट्रू मिलेगा, हमें कुछ पॉजिटिव के लिए ट्रू मिला था, कुछ नेगेटिव नंबर्स के लिए भी ट्रू मिला था। तो कौन से नेगेटिव नंबर्स के लिए ट्रू मिलेगा मेरा प्रेडिकेट, इट इज टेलिंग अस इफ यू टेक वैल्यूज फ्रॉम -1 to 0, अगर आप कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं जो ये रेंज में लाई करेगा फॉर दिस, योर प्रेडिकेट इज गोइंग टू बी ट्रू। सपोज मैं x का वैल्यू लेती हूँ -2, तो मैं देखती हूँ कि क्या इसके लिए ट्रू है क्या मेरा प्रेडिकेट, क्या x इक्वल्स टू -2 के लिए ट्रू रहेगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या था मेरा, x स्क्वायर ग्रेटर देन 1/x। क्या ये ट्रू है? x का वैल्यू है -2, No, no, ma'am. -2 इज इट बिगर देन -1/2? नो, No. राइट, नो। सो वही बोल रहा है कि आपको हर एक एलिमेंट डालना है बच्चों। आपका डोमेन क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर, तो उसके कौन कौन से नंबर के लिए मेरा प्रेडिकेट ट्रू है, आपको सारे नंबर लिस्ट आउट करने हैं, आपको कोई नंबर छोड़ नहीं देना है। तो मैंने पाया कि मैं अगर कोई वैल्यू लूँ जो x से बड़ा रहेगा तो सारे वैल्यू के लिए मेरा प्रेडिकेट ट्रू है। एंड नेगेटिव नंबर्स में कौन से वैल्यू के लिए ट्रू है, वैल्यूज विच आर लाइंग बिटवीन -1 to 0, सो उन वैल्यूज के लिए मेरा प्रेडिकेट क्या होने वाला है, ट्रू होना है। सो ये होगा आपका ट्रूथ सेट के एलिमेंट्स, ये होने वाले आपके ट्रूथ सेट के एलिमेंट्स। सो दिस वे यू आर गोइंग टू राइट डाउन द आंसर। नॉट टू वरी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार और डिस्कस करेंगे। विल टेक दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास, ऑलराइट। So that's it in today's lecture. We'll share the attendance link in the chat box. Fill the attendance. I've shared the attendance link in the chat box, so you can fill the attendance. मैम मतलब एक बार शॉर्ट में क्वांटिफायर का मतलब बताओ ना। बेटा अभी तक मेरा क्वांटिफायर स्टार्ट नहीं किया है, मैं जस्ट आपको प्रेडिकेट बता रही हूँ, प्रेडिकेट और उसका ट्रूथ सेट। क्वांटिफायर आई हैवंट स्टार्टेड येट। मैंने कहीं पे भी क्वांटिफायर का नाम लिया अभी तक, क्वांटिफायर मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं। मैं सिर्फ आज प्रेडिकेट का बता रही हूँ कि प्रेडिकेट क्या होता है। सेंटेंस होता है जिसमें अननोन्स रहता है, उसकी जगह वैल्यू रखना होता है, जो वैल्यू उठाते हैं उसे डोमेन कहते हैं। एंड उसका ट्रूथ सेट मतलब क्या, कि जो जो वैल्यू के लिए मेरा प्रेडिकेट ट्रू है दैट विल कम अंडर ट्रूथ सेट। बस आज यही पढ़ाया है लेक्चर। क्वांटिफायर का मैंने कहीं जिक्र नहीं किया, ना नाम लिया है। मैम क्वांटिफायर्स वही ना जो ऐसा एटलीस्ट वन, सेम, ऑल ऐसा